بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی مرکز پر آپ سب کو خوش آمدید۔ 25 سالہ مالکن روز مجھ سے کپڑوں سمیت مساج کرواتی، مساج کروا کر 300 روپے پکڑا دیتی۔ میں بھی پھر خاموشی سے مساج کرتی اور کسی کو کچھ نہ بتاتی۔ ایک رات مالکن نے مجھے گھر پر روک لیا۔ رات ہوئی تو اپنے کپڑے اتار کر سائڈ پر رکھے اور پھر میرے ہوش اڑ گئے۔ اس رات مالکن، میں ایک مالشی عورت کی بیٹی تھی۔ میری اماں پورے گاؤں میں اماں مالش والی کے نام سے مشہور تھی۔ ہمارے گاؤں کی جاگیردارنیاں اماں کو ہی اپنے مالش کے لیے بلاتی تھیں۔ میں اس وقت سال کی تھی جب اماں مجھے بھی اپنے ساتھ لے جانے لگی اور میں بھی اماں سے مالش کرنا سیکھنے لگی، لیکن وہ جاگیردارنی پیسے بہت کم دیتی تھیں۔ پہلی پہل تو ان کم پیسوں کی وجہ سے آرام سے گزر بسر ہو جاتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مہنگائی بڑھنے لگی۔ مگر نہ تو جاگیردارنیوں نے پیسے بڑھائے اور نہ ہی گاؤں میں جو بھی اماں سے مالش کرواتا انہوں نے کبھی حوصلہ دکھایا۔ وہ ابھی کبھی 10 روپے پکڑا دیتی اور کبھی 20 روپے۔ اماں جب کہتی کہ ان پیسوں سے اب گزارا نہیں ہوتا تو وہ کہتی، لو بھلا تم کرتی کیا ہو، مزے سے بستر پر بیٹھ کر مالش ہی تو کرتی ہو۔ اماں کا بہت دل دکھتا تھا۔ وہ مالش کر کر کے ہلکان ہو جاتی اور عورتیں پیسے تو بڑھانا دور کی باتیں سنانے لگتی۔ میرے ابا شہر میں چوکیدار کی نوکری کرتے تھے، 15 دن بعد ہی گاؤں کا چکر لگاتے تھے۔ ایک بار گاؤں آئے تو اماں کہنے لگی کہ میں تھک جاتی ہوں ان عورتوں کی مالش کرتے کرتے، لیکن یہ ہے کہ 10-20 روپے دے کر تنخواہ دیتی ہیں۔ ابا کہنے لگے کہ شہر میں ایسا نہیں ہوتا، 10-15 منٹ کی مالش کے لوگ 200-300 پکڑاتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ اماں کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اماں کہنے لگی، سچ بتا رقیہ کہ ابا اتنے ڈھیر سارے پیسے ملتے ہیں شہر میں؟ اماں کو شاید اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ابا کہنے لگے، ہاں ہاں رقیہ کی ماں، جس بنگلے میں چوکیداری کرتا ہوں وہاں جو عورت مالکن کی مالش کرنے آتی ہے اس نے خود مجھے بتایا کہ مالکن اسے 200 روپے دیتی ہیں۔ اماں یہ سن کر خوش ہو گئیں، کہنے لگی، اس طرح تو میں دن میں کافی پیسے کما سکتی ہوں۔ اماں کی بات سن کر ابا بھی سوچ میں پڑ گئے۔ 2 دن بعد جب ابا شہر جا رہا تھا تو مجھے اور اماں کو بھی ساتھ شہر لے گیا۔ بڑی بڑی عمارتیں، بنگلے اور پکی سڑکیں دیکھ کر تو میں بہت خوش ہوئی، لیکن جب ابا کا بوسیدہ سا گھر دیکھا تو میرا دل بجھ کر رہ گیا۔ میں 16-17 سال کی ہو چکی تھی اور اماں مجھے بھی مالش کے سارے گن سکھا چکی تھی۔ اماں کی تو اب عمر ڈھلنے لگی تھی، لیکن میں جوان جہان تھی۔ شہر میں ابا جس چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا ہم بھی وہیں رہنے لگے۔ پہلے پہل تو میرا اس گھر میں ذرا بھی دل نہ لگا۔ مجھے بات بات پر اپنا گاؤں یاد آتا، اپنے گاؤں کا گھر یاد آتا، بڑا صحن یاد آتا۔ میں روتے ہوئے اماں سے کہتی، اماں واپس گاؤں چلو، میرا دل نہیں لگتا یہاں۔ لیکن اماں کہتی کہ کچھ دن یہاں پر رہو گی تو تمہارے یہاں پر دل لگ جائے گا۔ ابا جس گھر میں چوکیداری کرتے تھے اماں کو بھی وہیں مالش پر لگوا دیا۔ اماں مالش کرنے میں ماہر تھیں، اس لیے اماں کو بہت پیسے ملنے لگے۔ ابا بھی بہت خوش تھا۔ سارا مسئلہ میرا تھا کہ میں گھر پر اکیلی ہوتی تھی اور اماں کو میری فکر ستاتی رہتی تھی۔ جب اماں گھر آتی تو کہتی کہ مجھے پورا دن تیرا ہی دھیان رہتا ہے، اگر تو بھی کسی کے گھر کام کو لگ جائے تو مجھے بھی کچھ تسلی ہو، میں اپنا کام دگنا کر لوں۔ مجھے تو بس یہ ہوتا ہے کہ فٹافٹ مالش کروں اور تیرے پاس پہنچ جاؤں۔ شہر ہے اور پھر تجھے یہاں کا پتہ بھی نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ تم اجنبیوں کے لیے دروازہ کھول دو۔ مگر میں تو ازلی ڈرپوک تھی، ایسے معاملات میں بے حد گھبراتی تھی۔ پورا دن گھر کا دروازہ بند کیے کمرے میں بند ہو کر بیٹھی رہتی تھی۔ ایک دن اماں جب گھر پر آئیں تو بہت خوش تھیں۔ مجھ سے کہنے لگیں، رقیہ تیرے ابا نے تیرے کام کا بھی انتظام کر دیا ہے۔ ایک بیگم صاحبہ ہے جو اکیلی گھر پر رہتی ہیں اور اس کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے سوائے ایک چوکیدار کے۔ وہ چوکیدار بھی بڈھا ہے، بالکل تیرے ابا جیسا۔ وہ مالکن گھر پر مالش تو کروانا چاہتی ہیں، لیکن اسے دن بھر کے لیے ملازمہ بھی چاہیے اور تجھے زیادہ کام نہیں کرنا پڑے گا، بس چھوٹے موٹے کام کرنے ہوں گے اور اس عورت کی مالش کرنی ہوگی۔ میرے لیے یہ کام بہت آسان تھا۔ میں نے کہا، اماں کتنے پیسے دے گی وہ؟ اماں کہنے لگی، تم کیوں پوچھ رہی ہو، میں نے کر لی ہے پیسوں کی بات، تجھے بس کام سے غرض رکھنا ہے، پیسے میں خود اس سے لے لیا کروں گی۔ اماں کی بات سن کر مجھے غصہ آیا تھا۔ گاؤں میں بھی اماں یہی کرتی تھیں، مالش مجھ سے کرواتی اور پیسے اپنے پاس رکھ لیتی، پھر کہتی تو اپنی اماں سے پیسے مانگے گی، شرم نہیں آئے گی تجھے؟ مجھے بھی شوق ہوتا تھا کہ جب میں محنت کرتی ہوں تو پیسہ میرے ہاتھ میں آئے۔ بہرحال اماں کے تیور سے میں جان چکی تھی کہ اماں مجھے 1 پائی نہیں دے گی۔ اگلے روز میں بھی اماں کے ساتھ چلی گئی۔ وہ ایک بنگلہ تھا جہاں پر اماں مجھے چھوڑ گئیں، لیکن میں اس کی مالکن کو دیکھ کر بے حد حیران ہوئی تھی۔ وہ تو ایک اچھی خاصی جوان جہان عورت تھی، لیکن تھی بڑی عجیب و غریب قسم کی۔ پہلے تو مجھے یہ حیرت ہوئی کہ جوان جہان عورت کو بھلا مالش کی کیا ضرورت ہے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ مجھے کیا لگے، مجھے تو بس اپنے کام سے غرض ہونی چاہیے۔ دوسری بات جس نے مجھے حیران کیا تھا وہ مالکن کی شکل و صورت تھی تو وہ عورت، لیکن اس کی شکل و صورت کافی عجیب و غریب تھی، کچھ مردانہ قسم کی۔
आवाज़ भी भारी थी। उस दिन मुझे घर के चंद काम बताया और कहने लगी कि काम से फारिग होकर तुम मेरी मालिश कर देना। मैंने किचन में जाकर बर्तन धोए, किचन साफ किया। अपने छोटे मोटे काम निपटाकर जब मैं मालकिन के कमरे के पास आई और उसके कमरे पर दस्तक दी तो उसने मुझे अंदर आने की इजाज़त दे दी। मैं उसके कमरे में जैसे ही दाखिल हुई तो वो कहने लगी, दरवाज़ा बंद करके लॉक कर दो। पता नहीं एक औरत होते हुए उसकी नज़रों में ऐसा क्या था कि मेरा दिल अजीबो गरीब सी बेचैनी में मुब्तला हुआ था। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने साइड टेबल पर रखी शीशी की तरफ इशारा किया और कहने लगी कि मेरी मालिश कर दो। मैंने वो तेल की शीशी पकड़ी और बैठ गई। इससे पहले कि मैं उसके पाँव से पांचा थोड़ा ऊपर करती, उसने फौरन से मुझे टोक दिया। पर जैसा उसने मुझे चिल्ला कर कहा कि नहीं नहीं, पांचे ऊपर मत करना, उसके इस तरह चिल्लाने पर तो मैं पूरी तरह से चौंकी और घबराई थी। मैंने फौरन से उसका पाँव छोड़ दिया। कहने लगी, बिना पांचा ऊपर किए मेरे पाँव की मालिश कर दो। उसकी ये बात मुझे बड़ी अजीबो गरीब लगी। भला ऐसे भी कभी मालिश हुई है? मैंने कहा, मालकिन ये ऐसा कैसे मुमकिन है? कहने लगी कि बेशक मेरे कपड़ों पर तेल लग जाए, लेकिन तुम कपड़ों समेत ही मेरी टांग और पाँव की मालिश करोगी। ये बात सुनकर मुझे इस औरत की अक्ल पर शुबा सा होने लगा कि क्या वो पागल थी। मैंने कहा, इस तरह तो मालिश मुमकिन ही नहीं है। मैंने नोट किया कि इस औरत के चेहरे की हवाइयां न जाने किस बात पर उड़ी हुई थीं। कहने लगी, तुम्हें जैसे कह रही हूँ वैसा करो। बेशक पूरे तेल की शीशी मेरी टांग पर उंडेल दो, लेकिन तुम मेरे पांचे को ऊंचा नहीं करोगी। बहरहाल मैंने दोनों हाथों में तेल अच्छी तरह से भर लिया। उसने एक रेशमी किस्म का ट्राउजर पहन रखा था जो कि उसकी टांग के साथ चिपका हुआ था, लेकिन यूं कपड़ों समेत मालिश करना मेरे लिए दोहरी मुसीबत बन गया था। मेरी ताकत भी ज्यादा खर्च हो रही थी, लेकिन मैंने जी जान लगाकर उसकी टांगों की मालिश की थी। पूरा 1 घंटा मैं उसकी टांगों की मालिश करती रही। मेरे तो हाथ कपकपाने लगे थे क्योंकि मेरी दोहरी मेहनत लग रही थी। उसके कपड़े भी खराब हो चुके थे, मगर इसके बावजूद उसने पांचा ऊपर नहीं किया था। जब 1 घंटा पूरा हो गया तो उसने हड़बड़ाकर आंखें खोली। कहने लगी, बस ठीक है, तुम अब जाओ, मेरे लिए चाय बना कर लाओ, और हाँ, बीच में इलायची जरूर डालना। मैंने हाँ में सर हिला दिया। न जाने क्यों एक ही दिन में मुझे वो शुकूक शुबहात में डाल चुकी थी। एक नज़र मैंने उसके पैरों पर डाली और फिर अपने पैरों को देखा। उसके पैरों की साख तो बिल्कुल मर्दाना थी। न जाने क्यों मेरे दिल में अजीब से वसवसे से पनपने लगे थे। मालकिन आंखें मूंद कर बिस्तर पर लेटी थी। मैं घूर घूर कर उसके चेहरे को देखने लगी। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं अपने सामने जो देख रही हूँ वो हकीकत नहीं है, बल्कि हकीकत तो कुछ और ही है। खैर, मुझे वही बुत बना खड़ा देखकर मालकिन ने आंखें खोली और फिर माथे पर घूरी डालकर कहने लगी, ये क्या टुकुर टुकुर देख रही हो? मैंने कहा ना कि मुझे चाय चाहिए। उसकी बात सुनकर मैंने सर झटका और फौरन कमरे से बाहर आ गई। जब चाय बनाकर उनके कमरे में देने के लिए आई तो मुझे कमरे से खुसर फुसर की आवाजें आ रही थीं। ऐसे लग रहा था जैसे कमरे में कोई मर्द मौजूद हो और सरगोशी नुमा आवाज में बात कर रहा हो। अगले ही पल मैंने दरवाजे को थोड़ा सा धकेला तो खुलता चला गया। कमरे में देखा तो सामने मालकिनी अकेली बैठी थी। मुझे देखकर हड़बड़ा सी गई। फौरन अपने बालों को कान के पीछे किया और गला खंखार कर अपनी आवाज मसनूई तौर पर इंतहाई बारीक करते हुए मुझसे कहने लगी, आइंदा कमरे में आने से पहले दस्तक देकर आना। मैंने हाँ में सर हिला दिया था। मुझे मालकिन तो शुरू से ही बड़ी अजीब लगी थी। अभी भी वो बात कर रही थी तो यूं लग रहा था जैसे कोई मर्द बोल रहा हो, लेकिन मुझे देखकर फौरन अपनी आवाज तब्दील कर ली हो। यहाँ तक तो ठीक था, मेरे लिए नॉर्मल बात थी। हो सकता है मालकिन की आवाज हो ही ऐसी। जरूरी तो नहीं कि हर लड़की की आवाज सुरीली और बारीक हो। कुछ लोगों की तो आवाज भारी होती है। लेकिन कुछ दिनों बाद जो कुछ मैंने देखा, मेरी तो जान निकल गई थी। मुझे तो ये वसवसे आने लगे थे कि मैं जिसकी मालिश कर रही हूँ वो लड़की ही है या फिर कोई लड़का। सुबह का वक्त था जब एक मुलाजमा छुट्टी पर थी। मैं जल्दी उठकर घर की साफ सफाई में लगी थी कि जब खाना बनाने वाली मुलाजमा ने मुझे कहा कि आज मालकिन नाश्ता अपने कमरे में करेंगी, इसलिए तुम जाओ, ये नाश्ता उनके कमरे में ले जाओ। मैंने नाश्ते की ट्रे उठाई और मालकिन के कमरे में जाने लगी। मैंने 2-3 मरतबा कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी, मगर कोई आवाज न आई। हो सकता था कि वो बाथरूम में हो। ये सोचकर मैंने दरवाजा थोड़ा सा धकेला तो कमरा खाली था और बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। मैंने ट्रे लाकर टेबल पर रखी और मालकिन के कमरे की सफाई करने लगी। अभी मैं उनकी बिखरी चीजें लपेट ही रही थी कि तभी मुझे मालकिन के हल्के से चिल्लाने की आवाज आई। मुझे तो ये डर हुआ कि कहीं खुदा न खास्ता वो बाथरूम में गिर ही न गई हो। मैं फौरन भागकर वॉशरूम तक गई और जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोला तो मेरे होश उड़ चुके थे, क्योंकि मालकिन शेविंग मशीन हाथ में पकड़े हुए खड़ी थी। मुझे देखकर फौरन उसे अपने पीछे छुपा लिया और अपने गाल पर हाथ रखा। उनकी ठोड़ी से खून आ रहा था। शायद ये शेविंग मशीन उनकी ठोड़ी पर लग चुकी थी, मगर क्यों? अगले ही पल मालकिन ने मुझे कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दरवाजा खोलकर अंदर झांकने की? मैं तो उनकी भलाई चाहती थी। ये डर था कि कहीं उन्हें कोई चोट न लग गई हो, इसीलिए मैं दौड़ी दौड़ी चली आई थी।
मगर मारे शर्म और झिझक के मैंने वॉशरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। ये शेविंग मशीन भला मालकिन अपने चेहरे पर क्यों मार रही थी? मुझे गुज़िश्ता 2-3 दिनों का वक्त याद आने लगा। मालकिन अपने चेहरे पर मास्क लगाए बाहर जाती थी और घर में भी मास्क लगाकर ही घूम रही थी। हालांकि इस कदर गर्मी और हब्स थी। एक मर्तबा तो मालकिन की मालिश करते हुए मैंने उनसे कह भी दिया कि मालकिन, इस कदर हब्स है, आप ये मास्क उतार क्यों नहीं देती? मगर वो फौरन नजरें फिर कर कहने लगी कि मुझे एलर्जी है, अगर मास्क उतारा तो मेरी तबीयत बिगड़ सकती है। लेकिन अब उनका यूं अपने चेहरे पर शेव करना मुझे तो कई अंदेशों से दो चार कर चुका था। साफ जाहिर था कि मालकिन लड़की नहीं बल्कि लड़का है, मगर वो लड़की बनकर आखिर क्यों रह रहा है? मुझे तो खौफ सा आने लगा था, कहीं मेरे साथ कुछ गलत ही ना हो जाए। उनके घर में सिर्फ मैं थी और खाना बनाने वाली मुलाजमा थी। मैं उस दिन एक रोज की छुट्टी लेकर अपनी वालदा के पास गई थी। मेरे चेहरे पर परेशानी के कई आसार थे, जिसे मेरी अम्मा ने भी महसूस कर लिया था। कहने लगी, क्या बात है, तो मुझे कुछ परेशान सी लग रही है, क्या मालकिन तुझसे बहुत ज्यादा काम करवाती हैं? मैंने फौरन नफी में सर हिला दिया। मेरी माँ मुझसे वजह पूछने लगी तो मैंने आज तक जो जो देखा था सब अम्मा के गोश गुजार कर दिया। ये सुनकर वो हंसने लगी। कहने लगी, तू तो बिल्कुल ही पागल है, छोटी छोटी बातों को सर पर चढ़ा लेती है। तेरा काम वहां पर सिर्फ और सिर्फ मालिश करना है और कुछ नहीं। वो तो तुझे पैसे भी अच्छे खासे दे रही है, फिर क्यों नखरे कर रही है? अम्मा भी उल्टा मुझे ही डांटने लगी थी। अगले रोज मैं वापस वहीं आ चुकी थी, बल्कि एक मर्तबा फिर मुझे मालिश के लिए बुलवाया था। ये राज भी मेरे लिए राज ही रह गया था कि आखिर मालकिन मालिश कपड़ों के ऊपर से ही क्यों करवाती हैं? वो कपड़े हटाकर भी तो करवा सकती हैं। असल मालिश तो होती ही वो है, फिर आखिर उनका इस कदर झिझक और बदहवास होना क्यों? यही सोचते हुए जब मैं उनके कमरे में गई तो वो नीम दराज बैठी हुई मैगजीन पढ़ रही थी। मुझे कहने लगी कि मेरी अच्छी सी मालिश कर दो। मैंने हाथों पर तेल डाला और फिर ना चाहते हुए जानबूझकर फौरन उनका ट्राउजर ऊपर कर दिया। उनकी पिंडली मेरे सामने थी। जो मंजर मैंने देखा, मेरे तो होश उड़ चुके थे। उनकी टांग घने बालों से भरी हुई थी। सिर्फ यही नहीं, उनकी दोनों टांगों पर बाल ही बाल थे। मैं तो घबरा चुकी थी, फौरन उछलकर बिस्तर से उतरी। मालकिन जो मुझ पर चिल्लाने लगी थी, मुझे बदहवास देखकर खुद अपने चेहरे का पसीना पोंछने लगी और फौरन चादर अपनी टांगों पर गिरा दी। मैं कहने लगी कि तुम लड़की नहीं लड़का हो, तुम तो कहीं से भी मुझे लड़की नहीं लगती हो, बल्कि झूठ बोलकर मुझे हवस का निशाना बनाने के लिए तुमने यहाँ बुला रखा है। ये सुनकर तो मालकिन हड़बड़ा गई थी। जैसे ही मैं उस कमरे से निकलकर भागने लगी तो उसने फौरन मुझे पकड़ लिया और बिस्तर पर जा गिराया। उसकी गिरफ्त भी बेहद सख्त थी। मुझे तो अपनी जान पर बनती महसूस होने लगी। मैं रोने लगी थी कि न जाने वो मेरे साथ क्या करे, मगर अगले ही पल मालकिन रोने लगी और मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगी कि खुदारा इस बारे में किसी को मत बताना, वरना मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। लोग मुझसे बात करना पसंद नहीं करेंगे, सब मेरे बारे में तरह तरह की बातें करने लगेंगे। मालकिन की बात सुनकर तो मैं एक पल को वहीं बुत बन चुकी थी। अब तो ये बात जहन में आने लगी थी कि कहीं ये कोई ख्वाजा सरा तो नहीं। मैंने अपने खुश खलक को तर्क करते हुए मालकिन से कहा कि आप मुझे हकीकत बताएं, आखिर आप हैं कौन? ये सुनकर मालकिन मेरे सामने बैठकर रोने लगी कि मैं एक लड़की हूँ, मगर पिछले 5 सालों से मेरे हार्मोन्स में इस कदर तब्दीली आई है कि मैं लड़की से लड़का बनती जा रही हूँ। दरअसल मेरे अंदर मौजूद लड़की के जीन्स पर मर्दाना जीन्स हावी होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से मेरे मुंह पर लड़कों की तरह दाढ़ी मूंछ आने लगी है। यहाँ तक कि मेरे वजूद पर बाल और आवाज़ भी भारी हो चुकी है। मैं कई डॉक्टरों से इलाज करवा चुकी हूँ, दूसरे मुल्क में जाकर भी महंगी दवाइयाँ ले चुकी हूँ, मगर मुझे उससे आराम नहीं मिल सका। अब मुझे कामिल बाबा ने तेल दम करके दिया है और उनका कहना है कि अगर मैं इससे मालिश करूंगी तो बहुत जल्द मेरा ये मसला हल हो जाएगा। मालकिन की बात सुनकर मैं हैरान थी कि क्या ऐसा भी हो सकता है। खैर मैं कोई ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन मालकिन के हुर्फ ब पर यकीन रखा था। एक पल को तो मैं बिल्कुल ही डर चुकी थी कि कहीं वो सचमुच ही मर्द ना हो, मगर उस दिन के बाद मैंने उनकी अच्छी से मालिश करने लगी। साथ साथ वो कुछ दवाइयाँ भी ले रही थीं। धीरे धीरे उनके जिस्म पर और चेहरे पर आने वाले बाल खत्म होते चले गए और उनकी आवाज़ भी थोड़ी बहुत बेहतर होने लगी। ये उन दवाइयों का असर था जिनकी वजह से हार्मोन्स दोबारा से बैलेंस हो चुके थे। जब मालकिन बिल्कुल ठीक हो गई तो उन्होंने मुझे अच्छी खासी तनख्वाह दी थी, जो कि